Hello students, now I am here with part 2 of lesson number 12, that is adjective. I had already explained the concept of adjectives in my previous video. Today we will do part 2, lesson 12, adjectives. Here are word exercises given under the title Practice for Perfection. In first one exercise, you are to rewrite the sentences replacing the colored word with a word. Form the box to give the opposite meaning. यानी जैसे आप छोटी क्लासेस में भी अपोजिट्स पढ़ते थे, ठीक वैसे ही बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसके नीचे सेंटेंसेस हैं जिनमें ब्लू कलर के वर्ड्स हैं. उनको आपने अपोजिट में चेंज करना है. कहाँ से चूज करना है अपोजिट वर्ड? बॉक्स में से. और फिर उस सेंटेंस को आपने दोबारा राइट कर देना है जैसा कि मैंने किया है. फर्स्ट वन इज he is wearing a black shirt. Opposite of black is white. Put number 1 on the word white and rewrite the sentence. He is wearing a white shirt. That means black का opposite क्या हो गया? white. वह एक काली कमीज पहने हुए हैं और अपोजिट में क्या कहेंगे? वह एक सफ़ेद कमीज पहने हुए हैं. You can understand the Hindi meaning of each sentence. The car is slow. Slow means होता है धीमा, यानी गाड़ी धीमी है. Opposite of slow is fast. Put number 2 on fast and rewrite the easy to reach there. Easy means होता है आसान, यानी वहाँ पहुँचना आसान है. Opposite of easy is difficult. Rewrite the sentence using difficult words. It is very difficult to reach there. यानी difficult means क्या हो गया? मुश्किल. Arun's room is very untidy. अरुण का रूम बहुत गंदा है. गंदा का उल्टा क्या होगा? साफ. So you have to put here number 4 on the word clean and rewrite the sentence. Clean means क्या होता है बेटा? साफ. आप क्या लिखेंगे? Arun's room is very clean. Next, the clerk is very honest. Clerk बहुत ईमानदार है. Opposite of honest is dishonest, यानी बेईमान. Rewrite the sentence. The clerk is very dishonest. Next, the grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. Opposite of sour is sweet. And put number 6 on the word sweet. Rewrite the sentence. The grapes are sweet. Sweet का मतलब तो आपको पता ही है क्या है? मीठा. Next, my wife is very beautiful. You are to rewrite the sentence using the opposite of beautiful. That is, put number 7 on the word ugly, यानी भद्दा. And you will rewrite the sentence like this. My wife is very ugly. Next sentence. She stood first in the class. Opposite of first is last. And put number 8 on the word last. You have to write the comparative and superlative degrees of the following adjectives. आपको इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को नोटबुक में राइट करना है. अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है. यू कैन सी हेयर. फर्स्ट वन इज मैड एंड यू हैव टू राइट मैड, मैडर, मैडेस्ट. नेक्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट. इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, अगली, remove y and it will become uglier, ugliest. Next, tall, taller and tallest. Next, fine, finer, finest.
dirty, dirtier, dirtiest. Next, joyful, more joyful, most joyful. Next, well, better, best. Next, short, shorter, shortest. Next, bright, brighter, brightest. Difficult, more difficult, most difficult. Many, more, most. Next, bad, worse, worst. Next, wide. Wide means क्या होता है? चौड़ा. Wider, widest. So, you are to do these comparative and superlative degrees of the words given in the box for B exercise in your fair notebook. Prompts using comparative forms as shown in the example. यानी आपको comparative degree को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एन एलिफेंट एंड अ लॉयन, बिग ब्रैकेट में दिया हुआ है उनके लिए. ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे एलिफेंट को और लॉयन को? एन एलिफेंट इज बिगर देन अ लॉयन. ठीक है, यानी एक हाथी शेर से बड़ा होता है. नेक्स्ट देखिए, अ टाइगर, अ डियर. एडजेक्टिव क्या है? स्ट्रॉन्ग. यू हैव टू रीराइट इट. अ टाइगर इज स्ट्रोंगर देन अ डियर. नेक्स्ट, ये सेकंड वाला था. फर्स्ट वन में आपका दिया हुआ है जिराफ एंड अ कैमल. ब्रैकेट में क्या है बेटा? टॉल. एंड यू आर टू राइट लाइक दिस, अ जिराफ इज taller than a camel. Next, third one, gold and copper. Here is the word valuable. You have to write gold is more valuable than copper. Next, the sun, the moon. Here is the word bright in the bracket and you have to write it. The sun is brighter than the moon. Next, a car, a scooty. Here is the word expensive and you have to rewrite it using expensive. A car is more expensive than a scooty. I think you have got this exercise. Next, D exercise. You have to choose the correct option to fill in the blanks. आपको is dash French. There are three options: more easy than, easier than, and bigger than. Easy जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है? easy का easier. So you have to put tick mark on B option. Next, New York is dash Lisbon. Here are three options: BIGER, bigger than, no. More big than, no. And third one is BIGGER, bigger than. Yes, it is correct. So put tick mark here. Third one, roses are dash marigold. The most beautiful, beautiful, more beautiful than. We are comparing two things. So last one is correct answer. Put tick mark on this C option. Next, coffee is dash in Bengal. Popular, not as popular, more popular than. ये आपका सिंपल सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें डिग्री आएगी तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? पॉपुलर. ठीक है बेटा, कोई कंपेयरिंग के लिए आपके पास कुछ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. अगर ऐसा होता कॉफ़ी इज डैश टी, तब आपका यहाँ पर थर्ड वन ऑप्शन आ सकता था, लेकिन यहाँ आप फर्स्ट ऑप्शन को ही टिक करेंगे. नेक्स्ट, अ मोटर बाइक इज डैश अ बाइक. यानी मोटर से चलने वाली बाइक जो होती है वो सिंपल बाइक से कैसी चलती है?
faster than. Next, cities are dash towns, यानी शहर कैसे होते हैं कस्बे से, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं या शोर करने वाले होते हैं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है noisier than, NOISIER. B option noisy than, and C option is more noisy than. You have to put tick mark on the first one option and the correct answer will be noisier than. Next, 7th, these jeans are dash than the others, यानी ये जो जीन्स हैं कैसी हैं आप देखेंगे। कम ऑन नेक्स्ट पेज। गुड, बेटर देन, मोर गुड देन। करेक्ट आंसर इज बेटर देन। ओके बेटा, नेक्स्ट, ललित इज डैश अंकित, मोर हैंडसम देन, and the most handsome. You have to put here more handsome than. Put tick mark on this first option, A option. Okay beta, you may also write in the blanks also. So I am giving you value tip. Anushka was a great ruler. How will you judge a person's greatness or she possesses? Give the reasons to support your answer. यानी वैल्यू टिप में एक क्वेश्चन है छोटा सा। अशोका एक बड़ा अच्छा शासक था, तो तुम एक व्यक्ति की महानता को उसके धन से आंकेंगे या उसके अच्छे गुणों से जो उसके पास में है। आप मुझे कारण भी, अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी बताएंगे। Here is a picture of some children. Boy says, my pet is beautiful white rabbit. मेरे पालतू का नाम जो कि बहुत सुंदर है वो क्या है? व्हाइट रैबिट है, सफ़ेद खरगोश है। मेरा पालतू कौन है? सफ़ेद खरगोश, सुंदर सफ़ेद खरगोश। तो इसमें ब्यूटीफुल और वाइट जो है दोनों ही आपके एडजेक्टिव्स हैं। गर्ल सेज, आई हैव 2 birds एंड अ ब्राउन डॉग। अब 2 तो आपका नंबर को शो कर रहा है, तो कौन सा हो गया आपका नंबर ऑफ एडजेक्टिव? 2 birds एंड अ ब्राउन डॉग। ब्राउन क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। थर्ड गर्ल सेज, हुज पेट इज दैट पिंक फिश? वह गुलाबी मछली किसकी पेट है? यानी फिश के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ? फिश की क्वालिटी को बताने के लिए पिंक वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट, बॉय सेज, नॉट माइन, मेरी नहीं है, इट इज हिज, ये तो उसकी है। ही टोल्ड मी टू pour some water in the jar, उसने मुझे इस जार में पानी डालने को। एडजेक्टिव डिफरेंट टाइप्स थ्रू दिस पिक्चर। ओके बेटा, नेक्स्ट, ई एक्सरसाइज यू आर टू डू इट योरसेल्फ। As you are to read what the children have to say about their pets. ऊपर आपने पिक्चर में पढ़ा कि वो अपने पेट्स के लिए क्या कह रहे हैं। मैंने आपको बताया भी है क्वालिटी वाले कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। नाउ अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। पहले आप इस पिक्चर में अंडरलाइन कर लेंगे एंड लिस्ट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। क्वालिटी के कौन से हैं, क्वांटिटी के कौन से हैं, पॉजेसिव में कौन से आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नंबर में। अगर
If you have any query, you may contact me. In a nutshell, I am giving you a brief. Adjectives are describing words that tell us more about person, animals, place or things. यानी जो आपके विशेषण हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाते हैं, क्योंकि वो संज्ञा शब्दों यानी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या चीज़ों के नाम को डिस्क्राइब करते हैं. सेकेंडली, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन. गुणवाचक जो विशेषण है वो एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, गुणों की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग. मात्रात्मक जो विशेषण हैं वह हमें ये बताते हैं कि कितना कोई चीज़. बिलोंगिंग टू समवन और समथिंग, ये किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से बिलोंगिंगनेस यानी संबंधवाचक भी बोल सकते हैं हम इनको. कैसा संबंध है वो आपको बताते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द नाउन. निर्देश देने वाले निर्देशात्मक विशेषण जिन्हें आप कहते हैं, तो ये क्या है? किसी भी संज्ञा शब्द की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चन. प्रश्नवाचक विशेषण में प्रश्न किया जाता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक्सप्रेसेस द नंबर काउंट ऑफ द नाउन. और जो आपका नंबर वाला संख्यावाचक जो विशेषण होता है वह एक संख्या यानी गणना, संख्या शब्द की जो गिनती है उसको डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है. वी यूज द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टू मेक कंपैरिजन. हम विशेषण की 3 डिग्रीज को यूज करते हैं तुलना करने के लिए. दोज आर पॉजिटिव डिग्री इन विच नो कंपैरिजन इज डन. कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन द टू, जब हम 2 थिंग्स में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, जहां हम 2 से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करते हैं तो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई थिंक you have got all the exercises of this chapter and you are to do all the exercises neatly in your book. If you have any query, you may contact